Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Ali Wahid and you are on the channel of Medicare. So as you know that we have started the practicals of pharmacognosy, and in which we have started some drugs on which we have to study. So as you know that first two drugs we have covered in the previous experiments or lectures. So the first drug that we have studied is the cinnamomum, and the second drug that we have studied is the hydrostic. So let's revise the previous drug, and then we will move on to the next drug. So as you know, first of all, first we will discuss the local name of both of these drugs. So the cinnamomum local name is, cinnamomum has no local name, but it has the English name which is cinnamomum, and the local name of hydrostine is the golden seal or golden root or the eye root. Discuss the botanical name. So cinnamomum botanical name is Cinnamomum laurii, Cinnamomum acacia, and Gilesium. Cinnamomum gilesium, and the scientific name of hydrostine is the Hydrostine canadiensis. That we have discussed that cinnamomum part use. So cinnamomum is the inner bark of the shoot, while hydrostine is the root or the rhizome of the plant. We discuss the family name. So cinnamomum family is Lauraceae, while the family of hydrostine is Ranulaceae. Very good. So next thing is that we have discussed their chemicals or their characteristics. So the cinnamomum is very long, oblong, 3 to 4 centimeter in size, very sweet taste, odor is distinct or characteristic. And if you discuss the color of it, so it is yellowish brown like color, and composition of it is that it contains the sugars, it contains the starches, it contains a lot of flavonoids, it contains a lot of aromatic compounds, aliphatic compounds, oxygenated compounds, and it composed of hydrocarbons like cinnamon aldehyde, cinnamon acetate, cinnamyl acetate. These kind of compounds are present in it. And if you discuss the hydrostine, so it composed of 3 alkaloids, which is remember by a mnemonic which is high Badr Canada. So hydrostine, berberine, and canidine. So we have discussed the composition of it, and now we are going to discuss that what is the chemical characteristics of hydrostine. So it is a root, yellowish brown in color, very distinct odor, bitter taste, and uses it used as anti-cancerous, antioxidant properties, anti-inflammatory properties have in it. Next drug, which is our today's lecture, is this drug is belongs to clove. Clove, as you can see in the picture, we use it in our daily lives. So what are the benefits of it? Let's discuss it. So botanical name of clove is two botanical names are used. The first name is the old name which are used in the old ages, and now the modern name is came up. So you have to remember both of these names. The old name is Euglena caryophyllus, and the new name is Scientium acrotium. Okay. So how to remember this name? We have a mnemonic here. What is this mnemonic? Synzygium aroma, Eugleen's charm completes the clove story. अब इसको आपने याद किस तरह से करना है? अगर आपको याद हो कि टेंगल की वाली कहानी, जिसमें एक लड़की होती है जिसके बहुत लंबे बाल होते हैं, आपने उनसे याद रखना है, उनकी लव स्टोरी हमने पढ़नी है. उनकी लव स्टोरी बिल्कुल वैसे है जैसे हमारी क्लोव की स्टोरी है. अब किस तरह से आप इसे याद रखेंगे? सिंजियम अरोमा, सिंजियम आपने उस लड़की का नाम रख देना है, ठीक है, और उसकी अरोमा बहुत अच्छी थी. और युगलीन उस लड़के का नाम था, और वो बहुत चार्मिंग था, ठीक है. तो लड़की सिंजियम उसका नाम था लड़की का, और वो क्या थी, उसकी अरोमा बहुत अच्छी थी, उसके बाल इतने लंबे थे कि वो बहुत अच्छी लगती थी. और युगलीन जो था वो लड़का था, और वो बहुत चार्मिंग था. और ये चीज़ कंप्लीट करती है किसकी? उन दोनों की लव स्टोरी या क्लोव की लव स्टोरी को, ठीक है. सो सिंजियम अरोमा, अरोमा को आप कर देंगे एरोमैटिकम,
ठीक है। अरोमा के आगे ना TICUM लिख देंगे तो वो बन जाएगा। तो सिंजियम अरोमा ये पहला नेम बन जाएगा, और दूसरे में यूग्लीन, और चार्म की जगह आप लिख देंगे कैरियोफाइलस। ठीक है, चार्मिंग के सी से कैरियोफाइलस लिख देंगे तो वो नेम बन जाएगा। बोटेनिकल नेम की बात करें तो यूग्लिना कैरियोफाइलेटा, ये ओल्ड नेम है, ये उन्होंने लिखा हुआ है तो आप भी यही लिखेंगे। कॉमन नेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लोव बर्ड्स या लोंग आप कह सकते हैं, LAUNG लोंग आप इसको जो है लोकली नेम इसको बुलाया जाता है। पार्ट यूज़ की बात करें ना तो ये फ्लावर बर्ड्स है, आप ऊपर से देख सकते हैं कि ये फ्लावर की तरह जो है वो ऊपर से है, तो इसको ड्राई फ्लावर बर्ड कहते हैं। फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली बहुत स्पेसिफिक सी है, ये वाली फैमिली आपको दूसरे किसी प्लांट में नहीं मिलेगी। तो मार्टीसी इसकी जो है वो फैमिली है। सो अगर हम बात करें तो इसको याद कैसे रखना है इसकी फैमिली नेम को, तो याद रखना है जो हमने टैंगल की लव स्टोरी पढ़ी है, क्लोव की लव स्टोरी, उसका किसी ने मर्डर कर दिया। हर लव स्टोरी का यही एंड होता है कि मर्डर हो जाती है। सो मर्डर से मार्टीसी जो है वो आप निकालेंगे। ठीक है, सिंजियम अरोमा यूग्लीन चार्म्स completes the love story of Clove and ends at a murder. So मार्टीसी इसकी फैमिली है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो बहुत ही अच्छी कंपोजिशन है इसकी। इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स हैं, यूग्लीन है, यूग्लिनीन, टैनिन्स, यूग्निनोल, कैरियोफाइलिन और फिनाइल प्रोपेनिन। ये जो नीचे मैंने 3 पेंसिल से लिखे हैं ना कंपाउंड्स, यूग्लिनीन, यूग्लिनोल, कैरियोफाइलिन और फिनाइल प्रोपेनॉल, ये 3 वोलेटाइल ऑयल्स हैं जो क्लोव के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लोव के अंदर आपने याद रखना है कि वोलेटाइल ऑयल्स लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं, और 3 वोलेटाइल ऑयल हैं, यूग्लिनोल, कैरियोफाइलिन और फिनाइल प्रोपेनॉइड। इसके अलावा फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, ये तो हर प्लांट में है। ठीक है, सो इसको याद कैसे रखना है, तो इसकी याद रखने के लिए ये निमोनिक मैंने बनाया है यूग्लीन कैरी। यूग्लीन वही लड़का जो टैंगल में आता था, यूग्लीन उसने कैरी किया हुआ है किसको, फूफो को, अपनी फूफो को, फ्लेवर यूग्लीन टैंगल। ठीक है, तो यूग्लीन ने अपनी फूफो को उठाया हुआ है और उसकी फूफो का जो है ना कोई सामान उठाया हुआ है, फूफो का कोई फ्लेवर उठाया हुआ है, और एंड में वो यूग्लीन को टैंग बना देती है। टैंग आपको पता है बहुत अच्छा, बच्चे जो है वो टैंग को पानी में मिला के पीते हैं, बहुत अच्छे टेस्ट का होता है, तो उससे आपने याद रखना है। अब यूग्लीन से क्या बनेगा, यूग्निनोल, कैरी से बनेगा कैरियोफाइलिन, फुप्पो से बनेगा फिनाइल प्रोपेनॉइड्स, फ्लेवर से बनेगा फ्लेवोनॉइड्स, यूग्लीन से अगेन यूग्लिनीन बनेगा, और टैंग से हमारे पास टैनिन्स बनेगा। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो खुद आप इसकी मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं कि इसका साइज़ 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं है इसका साइज़। कलर इसका डार्क ब्राउन सा है। शेप की बात करें तो अपीयरेंस जो इसकी हेड है उसमें फ्लावर्स का बर्ड है और नीचे स्टॉक है। इसका टेस्ट इसका बहुत स्पाइसी सा टेस्ट होता है। ऑर्डर इसकी तरह पंजेंट किस्म की है और टेक्सचर इसका रफ़ है।